Okay, Rip Van Winkle. So I'll read the very first paragraph, that is before we read. Rip Van Winkle was a simple villager. He was a gentle fellow and helped others. उसकी ये qualities याद रखना. Simple था and he was very helpful. He slept for 20 years under the influence of a strange drink. When he regained his conscience, he returned to the village. He found everything changed there. Let's read his story and learn more about him. That's the brief summary of the story. Many years ago, there lived a man called Rip Van Winkle in a little village of America. So the story is set in a village of America. He was very gentle and kind, two qualities. The villagers liked him because he was always willing to help others and ready to do all their petty jobs. Third quality, he was very helpful. He was gentle, he was kind, and he was helpful. And he was ready to do their petty jobs, means menial jobs या small jobs or simple jobs, छोटे मोटे काम, daily errands जिनको कहा जाता है, probably purchasing a grocery, helping somebody with something, not something major but something which is pretty routine and daily based task. The children shouted with joy whenever Rip came along, for they knew. For यहाँ पर क्या symbolize कर रहा है? It stands for the conjunction because. फैन बॉयज वाला फॉर है ना, फॉर आई कुड नॉट कम येस्टरडे फॉर आई हैड माई एग्जाम. तो फॉर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ विश्रुत बताओ? बिकॉज. ठीक है. द चिल्ड्रन शाउटेड विद जॉय वेन एवर रिप केम अलॉन्ग, फॉर दे न्यू दैट ही लाइक नथिंग बेटर दैन टेकिंग पार्ट इन देयर गेम्स. एक और क्वालिटी क्या समझ में आ रही है इससे अक्षज? Besides, he was kind, he was gentle, he was helpful with other people, he was very popular with kids. Why was he popular with kids? What is the reason mentioned here? Because he was very playful in nature. He used to enjoy playing with kids, and that is why the kids also liked him back. He made toys for them. Another thing that you must remember for them. These are the reasons for his popularity and for his likeness. Sorry, because of these are the reasons why people liked him. Kind, helpful, friendly, and he was popular with children because he played with them, and moreover he made toys for them and taught them to fly kites and to play marbles. So a number of things are mentioned here about Rip Van Winkle. So this is called painting the character. यहाँ पर character की तुमको brief information मिल रही कि उसकी क्या अच्छी चीज़ें थी. Often he would sit in the cool shade of a tree and tell them fine tales of Indian fairies and witches. So he was good at it. चुड़ैलों की और परियों की कहानियाँ सुनाया करता था under the shade of the tree. That's what children enjoy. And who better a person is like than who makes toys for children, teaches them how to fly kites, plays marble with them. तो ये तो ऐसा बंदा तो फेवरेट होना ही होना था बच्चों का स्पेशली. And besides that, he was very good with other people. However, one thing made Rip unhappy, and that was work. सब कुछ अच्छा था. Up till now, whatever we have read about Rip Van Winkle, everything seems very glossy, everything seems pretty good about this guy. He seems to be a wonderful chap. However, he was a lazy fellow. He did not want to do any work. Basically, work दूसरों का तो करता था, but as such, he did not want to do any work for earning his livelihood. कोई काम धाम नहीं करता था. फैमिली जो थी वो पूरी तरीके से ब्रोक थी. ब्रोक मतलब पुअर थी. रिप डिसलाइक्ड हार्ड वर्क. ये उसकी ख़राब हैबिट है. अच्छी क्वालिटीज़ तो क्या हैं कि पेटी वर्क तो कर देता था दूसरों के, बट ही डिसलाइक्ड हार्ड वर्क. स्पेशली व्हेन इट केम टू डूइंग हिज ओन हार्ड वर्क, अर्निंग मनी एंड डूइंग समथिंग गुड फॉर हिज फैमिली, ही वॉज नॉट द गाय. It was the reason he was very poor. Simple सा question आ सकता है, what was the reason because of which Rip Van Winkle was poor? Simple उसका ये आंसर है कि भाई he disliked hard work, right? And as a result he was very poor, and his wife and children were always hungry and ill clad. खराब फटे पुराने कपड़ों में रहते थे. Ill clad का मतलब ही होता है dressed. So ill का मतलब very badly dressed. Badly dressed का मतलब कपड़े ही नहीं थे उनके पास proper to wear all the time, because their husband and the father did not do anything because he disliked hard work. His little farm too, थोड़ी सी agricultural land थी. So probably he was also a farmer supposedly, but
उस फार्म पे कुछ नहीं करता था, वॉज बैडली केप्ट, कोई मेंटेनेंस नहीं था उस फार्म लैंड का। वीड्स, जानते हो ना वीड्स क्या होती हैं, राइट, वाइल्ड प्लांट्स जो होते हैं, वीड्स ग्रू ऑल ओवर इट। और वीड्स तभी उगती हैं जब किसी भी लैंड के ऊपर कोई खेती नहीं हो रही है, उसकी केयर नहीं की जा रही है, तभी तो। सो दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट हाउ रिप वैन विंकल वॉज इररिस्पॉन्सिबल बाई नेचर। रिमेंबर दिस लाइन, he was irresponsible towards his family. He was good with others, but what he missed upon, that he was not a responsible husband, he was not a responsible father, right? All right. Fences were broken down and his cows were always going astray. Astray का मतलब भटक जाना, ऑफ कोर्स, OFF वाला, हट करके। जो डेजिग्नेटेड पाथ होता है, जो डेयरी वाली काउज होती हैं, उनको मालूम होता है, क्योंकि उनका चरवाहा या शेपर्ड जो होता है, दैट पर्सन गाइड्स दोस काउज कि हाँ भाई इस पाथ पर हमको चलना है, ये ट्रेल है, यहाँ पर ग्रेजिंग लैंड है। इसको तो उसकी परवाह ही नहीं थी। जो जितनी भी गायें थीं, ऑल द काउज इन हिज फार्म, दे वेंट अस्ट्रे, भटक गई थी। दे बिकेम स्ट्रीट एनिमल्स, राइट, दे वर नो लॉन्गर फार्म एनिमल्स, क्योंकि देयर वाज नोबडी टू टेक केयर ऑफ देम, and the responsibility fell upon Rip Van Winkle, and he was irresponsible by nature. He was he was a lazy person and he hated hard work. So उसके पास ये सारी blessings थी, that he had a wife, he had a daughter, he had a home, he even had a farm, and he even had some animals there. If he was responsible by nature, he would have done pretty well, but he did something good. On one hand, he was playful, jolly natured, kind, good with children, but on the other hand, बहुत ही contrast उसका nature था, he was absolutely irresponsible towards his own family. Now you tell me, is such kind of a person the right kind of a person, that you're good with others and you're absolutely irresponsible towards your own family? Does it make sense? Right? So this is one of the morals of the story. कई सारे morals हैं story में, that if you are good with everyone, be good with everyone. Just you can't be selectively good with certain people. कि ठीक है, मैं गांव वालों के साथ तो बहुत फ्रेंडली हूँ, घर का खुद का जो बच्ची है, उसकी बेटी है, वाइफ एंड चिल्ड्रन, सॉरी बेटी का अभी तो बाद में तुमको पता चलेगा, बट चिल्ड्रन, उसके खुद के जो बच्चे थे वो भूखे थे, एंड इमेजिन ही वॉज प्लेइंग विद अदर चिल्ड्रन, टीचिंग देम टू फ्लाई काइट्स, playing marbles with them and telling them stories about fairies and witches. So that part was good, but at the same time he should have taken care of his own children, which he did not. His wife was much annoyed with his habits. Day by day she would scold her husband, but obvious है, अब वो काम धाम नहीं करेगा, भूखे हैं, उनके पास कपड़े नहीं है ठीक से पहनने को, the farm was all in a mess, the cows almost ran away, तो obviously wife तो irritate होगी. What an idol. Idol किसको कहते हैं? लेजी को. Similarly, एक similar sounding word होता है IDOL, idol. इंडियन आइडल होता है ना, आदर्श व्यक्ति जिसको हम पसंद करते हैं, रोल मॉडल. और एक और आइडल होता है, बताओ. लेजी. भगवान की मूर्ति को भी तो कहते हैं ना, आइडल ऑफ गॉड. बताओ, सुना है? आइडल, आईडीएलई का एक तो मतलब हो गया लेजी. IDOL, व्हाट डज दैट वर्ड हैज टू मीनिंग्स. क्या क्या मीनिंग है बताओ, सोचो. सो IDOL मीन्स रोल मॉडल, जैसे तुमने कहा अक्षर, एंड स्टैच्यू ऑल्सो. व्हाट एन आइडल, गुड फॉर नथिंग फेलो यू आर. आई एम सो सॉरी, am I on the right line? Yeah, okay. Oh yes, what does the word mean, ideal mean? Ideal. लेजी. No, IDEAL. नोटबुक निकालो अपनी, नोटबुक निकालो, रफ नोटबुक निकालो. आइडियल को रोल मॉडल कहेंगे, IDEAL, ideal. He is an ideal person. It may be your father, it may be your mother, it may be anybody whom you admire. जो आपके लिए एक आदर्श इंसान है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एन आइडियल. ही इज एन आइडियल, राइट. विराट कोहली इज एन आइडियल फॉर मेनी यंग बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ इंडिया. आइडल लिखो, IDLE, इसका तो मतलब हो जाएगा लेजी. फिर IDOL लिखो,
फर्स्ट उसका लिखो स्टैच्यू, IDOL का एक और मीनिंग लिखो, नॉट अ रोल मॉडल, IDOL इज अ पर्सन हु इज लव्ड, जिसको बहुत ज़्यादा चाहा जाता है, हु इज़ वेरी पॉपुलर, दैट इज़ वाई इंडियन आइडल, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि हर कोई वैसा बनना चाहता है, वेरी पॉपुलर। सो IDOL के दो मीनिंग हो गए, स्टैच्यू दैट यू सेड, एंड रोल मॉडल जो तुमने कहा उसका मीनिंग वो वर्ड होएगा आइडियल, IDEAL, आइडियल। सो आइडल सिमिलर साउंडिंग दो वर्ड्स हैं बट स्पेलिंग अलग अलग हैं, अलग अलग मीनिंग्स हैं, एंड देन आइडियल, इसका मीनिंग लिखो रोल मॉडल। ही इज एन आइडियल फॉर ऑल ऑफ अस, महात्मा गांधी इज एन आइडियल फॉर ऑल ऑफ अस। All right, so she would cry, why can't you do a little work on your farm instead of playing with the children or sleeping? Now tell me, Akshaj, when the wife asks Rip Van Winkle this question, that why don't you work instead of playing with children or sleeping, was she right or was she wrong? Absolutely right. That fine, it's good that you play with the children of the village, you help other people, but it would have been only good if you would have taken care of us also, means the wife and the children and the farm. But Rip would not say a word in reply because he knew कि वो गलत है, काम धाम नहीं करता है, सोता रहता है, खेल रहा है बच्चों के साथ, rather than shouldering his own responsibilities of being a husband and a father. Instead he would go to the village. तो जब जब उसको डांट पड़ती थी, whenever his wife lost at him or lost temper at him, तो क्या करता था, उसका escape route क्या था, he would go to the village once more and wait there until his wife's temper had cooled down. जब उसको मालूम था कि मेरी बीवी का पारा अभी चढ़ा हुआ है, she is absolutely mad at me, she is berserk, she will scold me again and again अगर मैं सामने रहूँगा, so it's better to leave the situation and wait for the temper to cool down. One day everything went wrong with Rip when his wife scolded him more than she had ever done before. That is the turning point of Rip Van Winkle's life. Just like every day or the routine thing, wife lost temper at him and she scolded him more than usual, right? थोड़ा सा इसको बुरा भी लग गया. This time Rip didn't go to the village as usual. Instead, taking his gun upon his shoulder and calling his faithful dog Wolf, उस डॉग का नाम ही रखा था इसने Wolf, probably वो Wolf जैसा दिखता होगा, maybe a husky or something. He set off to wander. Wander का मतलब क्या होता है, भटकना. To roam aimlessly, that is called wander. To set off का मतलब क्या होता है, to go on a journey or to start a journey, that is called set off. तो वो निकल पड़ा ऐसे ही, कोई उसका डेस्टिनेशन नहीं था, ही जस्ट वॉन्टेड टू एमलेसली रोम अबाउट. और वो गया भी कहाँ, तो ही वेंट अमंग द वुड्स, मीन्स द फॉरेस्ट, वुड्स एंड हिल्स. ही ले डाउन ऑन अ ग्रासी बैंक एंड स्टेड देयर टिल लेट इन द आफ्टरनून. तो चला गया वहाँ पर, नदी थी, उसके किनारा जो था, देयर वाज अ लॉट ऑफ ग्रास, ऑब्वियसली इट वाज कूल एंड शेडी, और जंगल भी था, नदी भी बह रही थी वहीं पर. As the sun was setting, Rip rose to go. फिर उसको लगा चलो अब चलते हैं, यहाँ टाइम काट लिया, अब जा कर के वापस जाते हैं. Come Wolf, he said to his faithful dog, let's go home now. Perhaps का मतलब क्या होता है, possibly, तुक्का लगा रहा है, if possible हो सकता है, या probably. Her temper has cooled down by this time, though I fear that she may have something to say to us for staying away so long. So now he was ready to go back, but अब इस बार उसको क्या डर लग रहा था, because इतनी देर के लिए वो कभी भी नहीं गया. जब जब उसको अपनी बीवी से डांट पड़ती थी, he used to go to the village, sleep under a tree and then he returned. But this time when he got extra scolding, he went to this bank, river bank in the woods, in among the hills. He slept there and he spent more than the usual time that he did on other days as compared to the other days. तो इसके लिए इसको थोड़ा सा डर लग रहा था कि इस बार घर जाने पर दोबारा डांट पड़ेगी कि तुम चले कहाँ गए थे इतनी देर के लिए, राइट. He was a bit skeptical, he was a bit scared about that. Skeptical का मतलब ही होता है थोड़ा सा डाउटफुल था, थोड़ा सा डरा हुआ.
They were about to walk down the hill when a voice called out from behind. पीछे से आवाज लगाई किसी ने. Rip Van Winkle. Bewildered का मतलब shocked या surprised. Rip looked all around. At first he saw nothing but a crow. Then he noticed a long way off. A long way off का मतलब at a very far distance or at a distance. A long way off का मतलब होता है at a distance. A strange little man. Now remember, description याद रखना, बहुत सारे लोगों का इसमें description है. Because there will be other characters introduced later on in the story. So this particular man who had called out his name was very strange looking and he was very short-heighted. And what was he carrying? With a keg upon his shoulder. Drum रखा हुआ था उसके ऊपर. वो बजाने वाला drum नहीं. Barrel होता है ना, जिसमें पहले लिक्विड वगैरह भर के रखी जाती थी, धान या चावल रखा जाता था, वैसा ड्रम अपने कंधे पर रखा हुआ था. Rip Van Winkle, the voice called out again. Rip walked across the hillside until he came near the man. Did you call me, sir? Rip asked with wonder. He was surprised कि यार out in this wilderness, on the hill, in the forest, who is calling out my name? So जब वो धीरे धीरे चल करके उस आदमी के पास गया, and then he just double checked. The man didn't reply. Instead, he made a sign. हैंड जेस्चर किया होगा उसने, as if to say, please carry this heavy keg up the hill for me. अब यहाँ पर क्या तुमको लगता है? Because Rip Van Winkle used to help people, तो उसका वो कैरेक्टर का जो एक हैबिट थी ना, ट्रेट जिसको कहा जाता है, TRAIT. ट्रेट का मतलब होता है हैबिट, चाहे अच्छी चाहे खराब. तो उसकी कैरेक्टर ट्रेट क्या थी? जब भी उससे कोई मदद मांगता था, सिवाय उसकी बीवी और बच्चों को छोड़ करके, वो मदद करने के लिए राजी हो जाता था. अब यहाँ वो फंसेगा because of that same habit. As such तो वो अच्छी हैबिट थी, as long as he was doing all that in the village, but he almost got a punishment for that, क्योंकि अगर वो आदत, वही चीज़ वो अपने बीवी और बच्चों के ऊपर भी अप्लाई करता तो उसके साथ ही नहीं होता जो अभी उसके साथ होने जा रहा है. Anyway, तो उसने उसको कहा कि भाई ये ड्रम जो है वो ऊपर तक पहुंचा दो हिल पे, एंड ऑब्वियसली गिवन हिज कैरेक्टर ट्रेट उसने मान लिया. नाउ Rip, though he was idle in his own home and did not care for hard work, was always ready to help other people. वही जो मैंने अभी तुमको explain किया, right? दूसरों की help कर रहे हैं, अपने घर वाले भूखे मर रहे हैं. So he took the keg upon his shoulder and both men began to trudge up the hill. Trudge का मतलब होता है walk, right? Stroll को STROLL को टहलने को कहते हैं, trudge को walk कहते हैं. तो ऊपर दोनों जाने लग गए. रिप वैन विंकल ने वो उसके ऊपर उससे ड्रम लेकर के अपने कंधे पर रख लिया. आफ्टर वॉकिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस दे केम टू अ हॉलो. माउंटेन्स के जो केव होता है उसको हॉलो भी कहा जाता है. नाउ यहाँ पर ये जो हॉलो है, दिस इज एक्टिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये नाउन है, और एज सच हॉलो क्या होगा? एडजेक्टिव. द पाइप इज हॉलो, खोखला है, राइट? तो यहाँ पर वो वाला एडजेक्टिव नहीं है, दिस इज अ नाउन. जियोग्राफिकल फीचर एक टर्म होता है, गॉर्ज, हॉलो, ये सारी चीज़ें जब पढ़ते हो तुम, तो केव को हॉलो भी कहा जाता है. सो दे केम टू अ हॉलो अमंग द हिल्स. तो हिल्स में ही एक केव थी. रिप सॉ अ क्राउड ऑफ मैन. दे वर प्लेइंग अ गेम ऑफ 9 पिन्स एंड द बॉल एज दे रोल्ड अलॉन्ग मेड अ नॉइज लाइक थंडर. नाउ 9 पिन्स एंड द बॉल का गेम क्या है? बेसिकली, जस्ट टू गिव यू अ रेफरेंस पॉइंट, बोलिंग करते हो तुम लोग, फंट्यूरा वगैरह में गए हो, लुलू मॉल वगैरह में, वो जो बोलिंग वाला गेम नहीं होता एली में, यू रोल द, यस एग्जैक्टली, फन जोन. तो बॉटल्स रखी रहती हैं एंड यू रोल दैट हैवी बॉल एंड इट स्मूथ सरफेस पे रोल होती भी जाती है, एंड द बॉल, इफ द बॉल स्ट्राइक्स ऑल द बॉटल्स यू गेट पॉइंट्स और यू विन वॉट एवर इट इज. तो वैसे ही ये ट्रेडिशनल गेम था. इस 9 पिन्स एंड द बॉल से ही वही वाली आज की मॉडर्न डे बोलिंग जो है वो ओरिजिनेट हुई है. तो वैसा ही कुछ गेम खेल रहे थे, और जैसे जैसे वो लोग बॉल को रोल कर रहे थे, मेड अ नॉइज लाइक थंडर, तब गरजने की आवाज आ रही थी, वेरी लाउड साउंड. दे वर स्ट्रेंज मैन टू. ये भी याद रखना, पहले जो लिटिल मैन मिला था वो भी स्ट्रेंज था, और ये लोग जो थे ये भी स्ट्रेंज थे. स्ट्रेंज लुकिंग, स्ट्रेंज इन दी अपीयरेंस, क्योंकि अभी तक हमको कुछ नहीं पता चला है कि ऐसी कोई हरकत की है जिससे, तो इसका मतलब ऑथर ये कह रहा है दे वर स्ट्रेंज बाय अपीयरेंस. अभी कुछ और हमको पता चलेगा जिससे और भी पता चलेगा कि वाई वर दे स्ट्रेंज. सो अपार्ट फ्रॉम देयर लुक्स दे वर स्ट्रेंज इन अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो. तो अभी तक ये जो स्ट्रेंज यूज किया है एडजेक्टिव, द ऑथर हैज ओनली यूज्ड इट फॉर देयर लुक्स. अब ये लुक्स देखना,
याद रखना, प्योर मेमोरी वर्क है। वन हैड अ लार्ज हेड, एक का सर बहुत बड़ा था, अनयूजुअली बहुत बड़ा था। अ ब्रॉड फेस एंड स्मॉल आईज like the eyes of a pig. Now imagine that in your head. A very large head, a broad face, a small eyes, sorry, and small eyes like the eyes of a pig. Do I need to explain this? If you can picture that in your mind, you can imagine कि strange looking ही होगा ऐसा इंसान। ये एक आदमी का है डिस्क्रिप्शन। लार्ज हेड, ब्रॉड फेस, स्मॉल आइज लाइक द आइज ऑफ अ पिग, वेरी अनयूजुअल लुक। अनदर हैड अ फेस विच सीम्ड टू बी ऑल नोज। विच सीम टू बी ऑल नोज का मतलब है द नोज वॉज वेरी बिग और पॉइंटी और लार्ज, राइट। वो नोज उसकी इतनी प्रोमिनेंट थी कि सिर्फ उसकी नाक ही दिख रही थी, बाकी का चेहरा हार्डली विजिबल था। पिनोकियो नाम का एक कैरेक्टर हुआ करता है, राइट, तुमने सुना होगा, पढ़ा होगा। हाँ 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 एग्जैक्टली, नाक बड़ी हो जाती थी। तो वैसे ही ऑलमोस्ट लाइक पिनोकियो, हैड अ वेरी लॉन्ग नोज। द लीडर वॉज अ फैट ओल्ड फेलो, मेरे जैसा बूढ़ा मोटा, गंजा तो नहीं होगा, मेरे जैसा। द लीडर वॉज अ फैट ओल्ड फेलो विद अ सनबर्न्ड फेस। सनबर्न्ड का मतलब टैंड था, धूप में उसका चेहरा जो है वो टैन हो गया था। सो तीन लोगों का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर। लीडर फैट ओल्ड था, फैट भी था, बूढ़ा भी था, एंड सनबर्न्ड, टैंड था, ये याद रखना। ही वोर अ लेस जैकेट। अब क्योंकि लीडर है तो ऑथर ने थोड़ा ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया है अबाउट हिज क्लोथिंग। लेस्ड जैकेट, अ ब्रॉड बेल्ट, अ स्वॉर्ड, क्योंकि वो लीडर था तो प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ दिस ऑथर ने उसको ऐसा कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन दिया है। एंड हाई हैट, हाई हैट वही जो लंबा सा, जो बहुत हॉलो सा ऊपर होता है, जैसे पिक्चर में यहाँ पर बना हुआ है। एंड हाई हैट विथ अ फेदर इन इट। रेड स्टॉकिंग्स, बहुत ही लॉन्ग मोज़ों को स्टॉकिंग्स कहा जाता है। एंड हाई हील्ड शूज, यू कैन सी दैट इन द पिक्चर, you rather you know so lace jacket, broad belt, sword, high hat with a feather in it, red stockings, very unusual, ऐसा red stockings men पहनते नहीं है ज़्यादा, right, और वो भी high heel shoes के ऊपर। so something was pretty strange about all these men. looks तो अलग थे ही, ये जो आदमी था जो बूढ़ा और मोटा था, ये कपड़े अलग से पहने हुआ था, और बाकी जितने भी आदमी थे उनका चेहरा ही अलग सा था, right. As soon as the men saw the keg, they stopped their game. तब तक वो लोग खेल रहे थे, जैसे ही रिप वैन विंकल के शोल्डर पे उन्होंने वो केग देखा, they stopped playing the game. The little man who had come with Rip opened the keg and from it poured out a drink for each of them. कुछ तो उसमें beverage था, right? पीने की चीज़ थी उसमें. Then he made a sign to Rip to hand out the cups. अभी तक वो छोटा आदमी, he has not spoken a single word to Rip Van Winkle. He was only signaling him कि ढाल करके कप्स में इन सारे लोगों में ये डिस्ट्रीब्यूट करो। द मैन सीम टू बी थर्स्टी बिकॉज ऑफ द गेम, काफ़ी देर से वो लोग खेल रहे होंगे। सो दे ड्रैंक ईगरली, कीनली, और बहुत तेज़ी से वो लोग पी गए। दे वर वेटिंग फॉर द ड्रिंक बिकॉज दे वर थर्स्टी। सो एज सून एज दे वर गिवन दैट ड्रिंक, दे गल्प्ड इट डाउन टू क्वेंच देयर थर्स्ट। देन बैक दे वेंट टू देयर गेम, और उसके बाद पी पा करके फिर से शुरू हो गए, द नाइन पिन्स वही गेम खेलने लग गए। Rip was thirsty too, but they didn't think of giving him a drink. तो छोटे आदमी ने he only had up till now signaled him कि इन लोगों को distribute the drink among these players. He did not ask Rip himself to drink it. उसने ये बिल्कुल नहीं बोला, लेकिन Rip भी obviously इतने देर से प्यासा था, भूखा भी होगा। So फिर जब ये लोग खेलने लग गए, so when nobody was looking, Rip took one sip from the keg. A good drink to be sure. उसको ये लगा, he assumed it कि अच्छा ही होगा. He whispered to himself. Then he took a little more and then a little more. Before long. Before long को underline करो और उसके नीचे लिखो soon. Long before का मतलब होता है बहुत समय पहले, a long time ago, and before long का मतलब होता है soon. तो जैसे ही इसने पिया, very soon, Rip began to feel quite drowsy. Drowsy means a little sleepy. Quite drowsy. Rather he felt very sleepy. Then he fell fast asleep. गहरी नींद में सो गए ये. So it was the effect of the beverage जो उसने drink पी थी. It was unclear whether it was alcohol or what, but obviously ये इस drink का ही effect था. When Rip woke up, he found himself still on the green hillside. So when he woke up, वो अभी भी उसी जगह पर उसने अपने आप को पाया जहाँ पर उसकी आंख लगी थी. He rubbed his eyes because it was a bright sunny morning.
The birds were hopping and chirping among the bushes, and an eagle was flying high in the sky above his head. Remember, जब ये इंसिडेंट हुआ तब शाम हो चुकी थी. While he carried the keg up the hill, poured the drink, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपने घर से सुबह डांट खा करके निकला था, शाम तक वहीं सोया था. अब जब ये उठा है तो सुबह हो चुकी है. और क्योंकि इसका ये डिस्क्रिप्शन साफ साफ लिखा हुआ है, बिकॉज इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, द बर्ड्स वर हॉपिंग, कूद रही थी इधर उधर, चर्पिंग, दैट चर्पिंग साउंड, अमंग द बुशेस, एंड एन ईगल वॉज फ्लाइंग हाई इन द स्काई अबव हिज हेड. राइट, तो सुबह का वक्त था. वाई आई मस्ट हैव स्लेप्ट द होल नाइट. तो उसको यही लगा, अरे रात हो गई, मैंने जो पिया था ये ड्रिंक, तो आई मस्ट हैव स्पेंट द होल नाइट, थॉट रिप. He looked around for the men who had been playing ninepins, but they were not to be seen anywhere. His dog Wolf had vanished too. वो भी disappear हो चुका था. But his gun was still lying beside him. तो क्या क्या changes थे ये भी याद रखना. He was at the same spot, but rather than evening or night, it was the morning. The men were gone, and so had his dog. These things were missing. बट एक चीज़ जो अभी भी उसके साथ थी, दैट वॉज हिज गन. रिप वॉज सरप्राइज टू सी दैट इट वॉज ईटन अवे विथ रस्ट एंड ऑलमोस्ट फॉलिंग टू पीसेस. अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन टू नोट. जो उसकी गन थी वो जंग लग चुका था, रस्ट हो चुकी थी पूरी तरीके से. वैन यू कीप समथिंग आउट इन दी ओपन, अ गन इज मेड ऑफ वॉट, वुड एंड आयरन, राइट. तो पूरी जंग हो चुकी थी, पुरानी हो चुकी थी, और उसको आधा वो खा चुके थे टर्माइट्स या कीड़े. Rip stood up, lifted his rusty gun, जो rusted पूरी गन थी, जंग लगी हुई गन थी, उसको उठाया, and went to look for the men whom he had seen the night before. Obviously he was curious कि क्या हुआ, कहाँ गए ये लोग. They have played some mean trick on me. ये अब assume कर रहा है कि इन लोगों ने कुछ foul play किया है मेरे साथ. They have given me something intoxicating. वो जो drink था उसमें कुछ तो ऐसा मिला हुआ था that I was knocked out. और मेरे गन के साथ देखो मेरा कुत्ता भी गायब हो गया है, मेरी गन अचानक से इतनी पुरानी कैसे हो गई, तो कुछ तो गड़बड़ है. ही स्टार्टेड फीलिंग अ लिटिल सस्पिशियस कि क्या हुआ है मेरे साथ, एंड ही सस्पेक्टेड दोज मेंट टू बी एट फॉल्ट. सेड ही इन एंगर, इनको गुस्सा भी आया. आई शैल गिव देम व्हाट दे डिजर्व. तो उसी में आउट ऑफ दैट फ्रस्ट्रेशन ही डिसाइडेड कि ही विल टीच देम अ लेसन, दोज मेन. फॉर एन आवर और सो रिप हंटेड अमंग द हिल्स एंड वैलीज, बट ही कुड फाइंड नीदर द क्वेयर लिटिल मैन. क्वेयर का मतलब ही होता है स्ट्रेंज. वो सारे आदमी इतने स्ट्रेंज लुकिंग थे. तो क्वेयर लिटिल मैन, नॉट द प्लेस वेयर दे हैड प्लेड देयर गेम. ना ही वो जगह मिली और ना ही वो आदमी मिले. भटकता रहा, ढूंढता रहा 1 घंटे तक. एट लास्ट फीलिंग वेरी टायर्ड एंड स्टिफ, अकड़ गई इसकी पूरी बॉडी चलते चलते, थक भी गया. ही सेट ऑफ फॉर द विलेज. अगेन ही सेट ऑफ ऑन द जर्नी. उसको रास्ता तो याद था अपने विलेज का. आई एक्सपेक्ट दैट डेम, डेम इसकी वाइफ का नाम, will half kill me for staying out all night. तो कह रहा था और लगभग मेरे को मार देगी. It's just an expression, not literally, but वो कह रही है जिंदा मार देगी वो तो मेरे को. मैं तो रात भर नहीं घर गया, हमेशा मैं थोड़ी देर डांट खा करके थोड़ी देर के बाद से लौट आता था. As he trudged along. When Rip reached the village, there were more surprise waiting for him. The shops were strange and the houses had changed. So ये सब चीज़ें याद रखना कि क्या क्या चेंजेस हुए. ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं. शॉप्स बदल गई थी, वो स्ट्रेंज थी, बदल नहीं गई थी, नई शॉप्स हो गई थी, या किसी को पेंट कर दिया हो गया, या किसी ने शॉप बेच करके कुछ और शॉप खोल ली होगी वहाँ पर. एंड द हाउसेज हैड चेंज्ड. किसी का 2 मंजिल मकान होगा तो हो सकता है वो छोटा हो गया हो, या किसी ने और मल्टी स्टोरीड बना लिया हो, या जो भी स्ट्रक्चर था, क्योंकि भाई इतने साल वो सोता रह गया. यू ऑल्सो नो दैट कि हुआ इवेंचुअली क्या है स्टोरी में. Rip did not know the people whom he met in the village street, and their clothes were of a kind. 20 साल तक ये क्योंकि ये सो चुका था, तो लोगों का क्लोथिंग सेंस भी तो बदल जाएगा ना. इमेजिन आज से 20 साल पहले हम और तुम इस तरह के कपड़े शायद नहीं पहनते, राइट. जैकेट्स तब भी हुआ करती थी, बट ये डिज़ाइन, ये हुडी का डिज़ाइन विद थ्रेड्स और दीज लेसेस हैंगिंग डाउन, ये कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ही. तो ड्यूरिंग दैट पीरियड घर बदल गए थे, द शॉप्स हैड चेंज्ड, यहाँ तक कि लोगों के कपड़े भी बदल गए थे. दैट इज ऑल व्हाट ही वाज ऑब्जर्विंग, व्हिच ही हैड नेवर सीन बिफोर. उसके लिए सब नया था. द चिल्ड्रन लाफ्ड एंड द डॉग्स बार्क्ड एट हिम एज ही वॉक्ड अलोंग. यू मस्ट हैव नोटिस जब भी कोई स्ट्रेंज लुकिंग आदमी जा रहा था, अ क्यूअर,
राइट, वेदर इट इज़ अ वुमन और अ मैन, कुत्ते भौंकने लगते हैं उसको देख करके, राइट। बेचारे कूड़े वाले जो होते हैं, रैक पिकर्स होते हैं, रात में अगर जा रहे होते हैं तो उन पे सब डॉग्स की स्टार्ट बार्किंग, क्योंकि दे सेंस के ये आदमी या औरत जो है कुछ अलग है, इससे कुछ खतरा होगा। सो बिकॉज रिप वैन विंकल इतने सालों बाद लौटा था उस विलेज में, उसको देख करके सारे डॉग्स जो है वो बार्क करने लग गए, एंड द चिल्ड्रन स्टार्टेड लाफिंग। टू टेल द ट्रूथ इट वॉज नो वंडर फॉर वॉट दे डिड। अगर सच बताएं तो ये ऑथर कह रहा है, टू टेल द ट्रूथ इट वॉज नो वंडर फॉर वॉट दे डिड। इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं कि वो बच्चे हंस क्यों रहे थे और कुत्ते भौंक क्यों रहे थे। रीज़न क्या था? फॉर बिकॉज रिप्स बियर्ड हैड ग्रोन वेरी थिक एंड हिज क्लोथ्स वर टैटर्ड एंड टॉर्न। फटे पुराने हो चुके थे कपड़े, 20 साल से उन्हीं कपड़ों में सो रहा था। दाढ़ी सोचो 20 साल में कितनी लंबी घनी हो गई होगी, तो ऑब्वियसली ही वॉज नथिंग बट अ सब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर। एट लास्ट रिप बिकेम इरिटेटेड, चिढ़ गया, इतनी देर तक बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे हैं, वो बच्चे जो खेला करते थे उसके साथ वो बच्चे भी नहीं थे, दूसरे बच्चे थे ये, एंड द डॉग्स आर बार्किंग, ही वॉज सो लवेबल। इससे पहले तो अब क्या कितना कॉन्ट्रास्ट हो गया था हर चीज़ में। He turned around and cried to the people who stared at him. घूर के लोग देख रहे थे उसकी तरफ. I am Rip Van Winkle. Does nobody here know me? He was referring to the old times. Like, old times क्या, वो तो assume कर रहा था ना कि अगला दिन हो गया है. तो he was irritated कि इस तरह से क्यों? Why are you treating me like a stranger? Just then, a young woman came along. Did you say Rip Van Winkle? She said. My father was called by that name. तो उसी भीड़ में से एक बच्ची या एक यंग वुमन सामने आई. One day when I was a little girl, he went away to the hills with his dog, Wolf, and his gun. His dog came home without him, but my poor father has not been seen since that day. तब उसको ये समझ में आ गया कि 20 साल पहले यही था, वो गया तो क्या क्या चेंजेस हो गए। कुत्ता तो वापस आ गया, रिप वैन विंकल नहीं लौटा, बच्ची छोटी थी बड़ी हो गई। How long ago was that? My good young lady asked Rip. थोड़ा थोड़ा सा he's now processing it. Full 20 years ago. पूरे के पूरे 20 साल बीत चुके इस इंसिडेंट को हुए हुए। 20 years, cried Rip. He was shocked, bewildered एकदम. Then I must have slept for 20 years on the hillside, though it seemed but one night to me. I felt that I had only slept for one night. But as you are telling it to me कि 20 साल बीत चुके हैं, I am your father. Now he tells कि मैं ही हूँ Rip Van Winkle, and that obviously I am your father. I am your father, Rip Van Winkle. He cried to the young woman. The little men who played nine pins must have been fairy men. इतनी ज़्यादा फेरी की कहानियाँ वगैरह सुनाता था. He got played along. इन्हीं के साथ जो है पोपट हो गया इन्हीं का. तब इसको समझ में आ रहा है वो जो नाइन पिन्स खेल रहे थे कुछ जादू वादू वाले आदमी थे, इनको टोपी पहना करके बेवकूफ़ बना करके, या बेवकूफ़ बनाना क्या, उनकी जो वो मैजिक ड्रिंक थी, वो ड्रिंक में कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से ही गॉट नॉक्ड आउट फॉर 20 लॉन्ग ईयर्स. ही डिड नॉट डाई, ही डिड नॉट गेट ईटन बाय एनी एनिमल स्टफ, बट वो 20 साल तक सो गया. तो ये सारा सस्पेक्ट उन्हीं लोगों पर कर रहा है, एंड ही इज़ अज्यूमिंग कि ये लोग फेरी मैन हैं. और फेरी मैन क्यों कह रहा है? क्योंकि हमेशा किसकी कहानी सुनाता था? फेरीज एंड विचेस की. तो सारा दिमाग पे उसका ही फितूर था, तो वो उसने अज्यूम कर लिया. फिर उसने सबको एक्सप्लेन किया. रिप एक्सप्लेन्ड आफ्टरवर्ड्स, एंड द ड्रिंक विच आई टुक फ्रॉम द केग मस्ट हैव बीन अ मैजिक वन. सब उसने बताया कि मैं वो डांट खा करके बीवी से गया हिल साइड, एक आवाज़ आई, अजीब सा आदमी आया, उसने मेरे को केग दिया, शोल्डर पे कैरी किया मैंने, ऊपर मैं शोल्डर पे, सॉरी, जब मैं केव पे, एक केव के पास बाहर बैठ करके अजीब से लोग थे, सबकी शक्ल को डिस्क्राइब किया होगा, दे वर प्लेइंग नाइन पेन्स. और उसके बाद उस छोटे से आदमी ने ही ऑर्डर्ड मी और सिग्नल टू मी टू पोर अ कप एंड सर्व द ड्रिंक टू एवरी वन. सो आई डिड दैट, एंड वाइल दे वर प्लेइंग आई थॉट कि मैं चलो मैं भी पी लेता हूँ. और उसके बाद मैं I felt very drowsy, and when I woke up everyone was gone. My dog was missing, but my gun was beside me, all rusty, and obviously this is how I look now. ये सब उसने explain किया. And a magic one that sent me to sleep for 20 years. तो ये इसने he joined the dots. इसने सबको ये explain किया कि वो magic potion या magic liquid ही रही होगी. Dame had died. और सबसे tragic change क्या हुआ था? Dame, जो इसकी वाइफ थी, had died while Rip was away, and Rip's house had also fallen down. Obviously जो रहा सहा ये आदमी था घर का, वो भी नहीं था, वाइफ मर गई, तो घर को देखने वाला ऐसे ही जो पहले आदमी था वो भी irresponsible था, and after the death of the mother
देयर वाज नोबडी, सो घर पूरा गिर ही गया. सो ही वेंट टू लिव विथ हिज डॉटर. तो ऑब्वियसली अब उसका घर ही नहीं बचा था, तो डॉटर प्रॉबली अपने हस्बैंड के साथ या कहीं और रहती होगी, तो उसके साथ वो रहने के लिए चला गया. द रेस्ट ऑफ हिज डेज ही स्पेंट इन पीस टेलिंग स्टोरीज टू द विलेज चिल्ड्रन. फिर वही कहानी, अब तो इसके पास नया स्टॉक था, खुद के ऊपर ये सब बीत चुका था. एंड वी मे बी श्योर दैट दे वर बेटर स्टोरीज दैन एवर. ये लास्ट का सेंटेंस बड़ा अच्छा है. एंड वी मे बी श्योर दैट दे वर बेटर स्टोरीज दैन एवर, बिकॉज इसके साथ खुद ये सब हो चुका था. नाउ ही वुड इवन टेल बेटर स्टोरीज टू द चिल्ड्रन. अभी तक तो सिर्फ मन गढ़ंत कहानियां सुनाता था, या प्रॉबली दो स्टोरीज दैट ही मस्ट हैव रेड समवेयर, और जो उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंडफादर या मदर ने उसको सुनाई होगी. बट अब तो ये खुद भुक्त भोगी है. Such a thing, such a strange incident has happened with him. So now he has a lot of material, lot of script to tell to the children. तो पीसफुली उसने बिताया. माँ तो बीवी तो मर चुकी थी, डांट वाट तो खानी नहीं थी उसको, बूढ़ा भी हो चुका था, ही हैड नो प्रेशर ऑफ वर्क. पीसफुल तो कटी उसकी जिंदगी. स्टोरीज भी अब वो सुनाता था. अगेन ही वेंट बैक टू द सेम लाइफ स्टाइल. मॉरल क्या क्या है अकॉर्डिंग टू यू ऑल? नाउ टेल मी, क्या मैसेज दे रही है स्टोरी? क्या क्या समझ पाते हो? देर आर मल्टीपल मॉरल्स. बताओ एक एक करके. अक्षय, बिगिन विथ यू. what do you feel after reading the story कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? what is the message that is being given by the story? Vishruth? One should not be lazy. Simple है. You should always be responsible towards your family, right? If you are helpful with others, if you are helpful towards others, be also helpful towards your own family. Don't neglect your duties and responsibilities, right? Or don't believe too much in fairy tales, right? When you start believing too much in fairy tales, आपका दिमाग भी वैसे ही हो जाता है. ये भी है इसका. और तुम इसका क्या सोच सकते हो? moral of the story, if you don't take action when you have the time, it will pass. अगर आप वक्त रहते एक्शन नहीं करोगे या हरकत नहीं करोगे, what you are expected to do, time will pass. इससे एक और मॉरल निकल के आता है that passage of time is inevitable. Inevitable का मतलब जिसको टाला नहीं जा सकता. You can't control the passing of time. What you can control is your own actions. तो जब इसके पास वक्त था तो दिन भर बच्चों के साथ कंचे खेलना, पतंग उड़ाना, लोगों की छुटपुट हेल्प करना, और अपनी खुद की गाय भाग गई, फार्म लैंड पूरी हालत में है, बीवी बच्चे भूखे हैं, फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं. सो टाइम नेवर स्टॉप्स फॉर एनीवन. ये कहावत तुमने सुनी होगी, टाइम नेवर स्टॉप्स फॉर एनीवन. तो इसके लिए भी टाइम नहीं रुका. चेंज इज ऑल्सो इनएविटेबल. वक्त के साथ हर चीज़ बदल जाती है. और ये मॉरल हमको किस चीज़ में पता चल रहा है? व्हेन ही रिटर्न बैक टू हिज विलेज, कितनी सारी चीज़ें बदल चुकी थी. द हाउसेज हैड चेंज्ड, shops had changed, his own appearance had changed, his own house had fallen down, his own wife had died, his daughter had grown up from a very little kid. तो ये सारे changes हो गए and he could do nothing to stop it. So, और फिर लास्ट में हमको ये पैराग्राफ से ये भी पता चल रहा है, when he says, ऑथर क्या कह रहा है? The rest of his days he spent in peace. इससे हल्का सा एक माइल्ड सा ये भी मैसेज जाता है, what has happened, we must accept the change. जो भी change हो गया है हम उसको इतना resist नहीं कर सकते हैं. He can't go back and fix what he had done wrong. So life moves on, time passes, we should act when you have the time, and we should also accept the change जो भी हमारे साथ हुआ है. He was earlier so shocked and surprised जब उस पे बच्चे हंस रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे, but then when he realized, he accepted that, ठीक है भाई, चलो मेरे साथ जो है बहुत बड़ा सा एक ट्रेजेडी हो गई. बट देन दिस वेरी लाइन जो ये कह रहा है ऑथर, ये राइटर जो कह रहा है कि ही स्पेंट इन पीस, मतलब उसने ही स्पेंट इन पीस, इसका मतलब उसने वो अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, सच अ थिंग हैपेंड विथ मी, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. So these are the morals of the story. But the most important moral is we should not be lazy, we should be responsible towards everything. We should not be selectively responsible. If we are responsible, we are responsible either completely or we are not responsible. हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि when it comes to playing games we are very responsible, but when it comes to studies we are irresponsible. इसका मतलब आप irresponsible ही हो. अगर आप irresponsible हो by nature तो आप
हर चीज़ में रिस्पॉन्सिबल होगे, चाहे आपको क्लास का मॉनिटर बना दिया जाए, चाहे आपको स्पोर्ट्स का प्रीफेक्ट बना दिया जाए, और चाहे आप अपने पेरेंट्स का कोई काम कर रहे हो, घर में हो, अपने भाई बहन के साथ जैसे इंटरेक्ट करते हो, when you grow up you will have your own family, you will be responsible with them. सेलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हम नहीं हो सकते, और अगर सेलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होएंगे अपनी मर्जी से कि हाँ चलो ये चीज़ में हमको अच्छा लगता है, हम इसकी तरफ तो जिम्मेदारी निभाएंगे और इस तरफ नहीं जिम्मेदारी निभाएंगे, तो हमारा हाल कैसा होगा? रिप वैन विंकल जैसा होगा. क्लियर? एनी डाउट्स इन द स्टोरी? ऑलराइट, read it and then we will have a test on Monday on this. ठीक है.